امریکی صدر کا بھارت پر آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کے موجودہ 25% ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس طرح وہ یوکرین میں جنگی مشن کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا سمیت 9 اراکین پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی مقدمات میں سزائیں ہونے پر 9 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ 5 اراکین قومی اسمبلی، 1 سینیٹر اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی نااہل قرار۔ سینیٹر شبلی فراز، رکن قومی اسمبلی عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی، رائے حسن نواز، زرتاج گل نااہل ہونے والوں میں شامل۔ بھارت کا غیر قانونی اقدام، 5 اگست 2019 کا سیاہ ترین دن، یوم استحصال کشمیر۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے یوم استحصال کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بھارت نے نہ صرف عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری بلکہ اپنے آئین کی بھی پامالی کی ہے۔ ISPR نے اس موقع پر ایک نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کیا جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک گونجدار پیغام ہے۔ پاک فوج کے سربراہان کا یوم استحصال پر کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف نے بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا، مسلح افواج کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت اور حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ 6 سال میں بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشہ تبدیل کرنے کے اقدامات کیے۔ کشمیری عوام کو ان کے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام بلا جواز گرفتاریوں، دھمکیوں اور محاصروں کا شکار ہے۔ بھارت نے مقامی میڈیا کو خاموش اور عوام کو آزادی سے اظہار محروم کیا۔ حکومت پاکستان کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کی 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت۔ کہا، بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدام مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی سیاسی منظرنامے کی تبدیلی کی سازش ہے۔ یوم استحصال بھارتی بربریت اور امن کے انکار کی سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھارت کی جانب سے 2019 میں کیے گئے متسبانہ اقدامات کی مذمت کے لیے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیش کی گئی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہیں۔ قرارداد وفاقی وزیر امیر مقام نے پیش کی۔ کہا، بھارت کے متسبانہ اقدامات قابل مذمت ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر بازار گرم کر رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ معرکہ حق نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ معرکہ حق کے باوجود کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ PTI کے 5 اگست کو احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ شازیہ مری نے انگریزی زبان میں یوم استحصال کشمیر پر قرارداد پیش کی۔ کہا، بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کو دیگر ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر اجتماع سے خطاب۔ کہا، بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت جمہوری ہے تو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔
भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मज़ीद मजबूत कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट किसी बैनुल-अक़वामी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं कर सकती। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात कराने को तैयार है। ये वाक़या दरअसल भारत का फ्रॉड था और भारत ने पहलगाम पर झूठ बोला, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का स्याह तरीन दिन बन चुका है। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीर को अपनी शहरक समझता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वीडियो बयान, कहा पूरी दुनिया ने मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ देखी हैं। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी तकदीर पर सब्त हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम, कहा कि हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर फैसला करेगा, हम साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। मकबूजा कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी की बेहिसी और मुजरमाना खामोशी तारीख का स्याह बाब है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सिंध असम्बली में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ज़ाहिर ख़याल, कहा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। कश्मीर हमारी बुनियाद और पाकिस्तान की शहरक है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पूरी दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर पर बात की। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों का उन्हें हक़ दिया जाए। सिंध असम्बली कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक में पाक फौज ने भारत के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरी अवाम की जदोजहद में उनके शाना बशाना खड़ा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम, कहा अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के आलमी इदारे भारत पर दबाव डालें कि वो कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दे। आज के दिन इस आज़म का इरादा करते हैं कि कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से रैली पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक निकाली गई। शुरका ने मार्च किया। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की रैली में शिरकत। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, तुलबा और तालिबात भी शरीक हुए। शुरका का कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार, कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में 5 अगस्त स्याह तरीन दिन है। मशाल मलिक की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मज़ार क़ायद पर आकर हमारी रूह को ताकत मिलती है। क़ायद आज़म ने ज़िंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वक़्फ़ किया। क़ायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। आज कश्मीर को मालूम है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क फैला हुआ है। भारत ने जंग में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। अल्लाह ने ही मारका हक में पाकिस्तान को फतह अता की। अफगान शहरियों की वापसी के हवाले से वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। POR कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। वजारत दाखिला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात, वसाइल पर बढ़ते दबाव की वजह से किया गया है। अफगान अबूरी हुकूमत, UNHC और दीगर के साथ ताउन किया जाएगा। नादरा और इस हवाले से जाने वाले रजिस्ट्रेशन खत्म करने के इंतजाम करेगा। FIA नामजद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सहूलियत फराहम करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सुबगदोश होने वाली यूरोपीय यूनियन के वक्त के सरबराह की मुलाकात।
सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने कसीरुल जहती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान पाक यूरोपीय स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI और मुजव्वज़ा इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि FBI इस्लाहात से GDP टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत में खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस्लाहात की राह में हायल रुकावटों को ख़त्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम्स क्लियरेंस में इस्लाहात को मुल्क भर में यकसा और मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इदारा जाती कार्रवाइयों में दरकार वक्त कम किया जाए। पहले से आयद करदा टैक्सेस का मौसर नफाज कलेक्शन में कलीदी किरदार अदा करेगा। FBI के अहदाफ के लिए मुकर्ररा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया गया तो 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से नया NFC अवार्ड जारी नहीं किया गया। रजा रब्बानी कहते हैं कि नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। हुकूमती शफाफियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पाक अमरीका मुआहदे की तफसीलात नहीं दी। KP में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर लाजमी अमल होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं बल्कि सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। बाजौड़ समेत किसी भी जगह कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। अलबत्ता नेशनल एक्शन प्लान पर लाजमी अमल होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ी हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सियासी फोर्सेस कहाँ हैं? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी PTI कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आला ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहान सरकारी तौर पर लेने की भी मंजूरी। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास। के इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में घायल यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत दी कि मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम की रफ्तार मुतासिर न हो। वाटर बोर्ड जल्द अज जल्द K4 पाइपलाइन का काम करे। रेड लाइन BRT आवाम का एक मंसूबा है, मजीद ताखिर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में राब्ता और ताउन बढ़ाएं। मंसूबे पर बिला तातुल काम जारी रखें। सिंध भर में खतरनाक करार दी गई इमारतों और गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक कायम कमेटी का चौथा इजलास। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में मखदूश इमारतों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इक़दामात का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया है कि अब तक कराची की 588 में से 253 इमारतों का सर्वे मुकम्मल हो चुका। इजलास में SBCA कवानीन में सख्त तरमीम के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट बनाने का फैसला। तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत पर इत्तेफाक। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला सरकारी एजाज लिचन ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया है। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्क नेवल फोर्सेस के हेड क्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात और तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के मुलजिम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा। गोलचिक नेवल बेस के दौरे पर आबदोजों की तामीराती सलाहियतों का भी मुशाहिदा किया गया। पाकिस्तान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस जंग में पाकिस्तानियों की शिरकत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन से वजाहत तलब करने का फैसला।
दफ्तर खारजा ने कहा कि यूक्रेनी हुकाम ने अपने दावे के हवाले से कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए और न ही बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया है। यूक्रेन के हुकाम ने इस मामले पर वजाहत तलब की। इसराइली वज़ीर आज़म का फौजी ऑपरेशन में तोसी और गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़ेर गौर मंसूबों में इन इलाकों में भी फौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जहाँ ये शुबा है कि यरगमाली रखे गए हैं। मंसूबे के हवाले से हतमी फैसला आज होने वाले काबीना इजलास में किया जाएगा। मुल्क में सोने की कीमत में 1,500 रुपए की कमी, फी तोला सोने की कीमत 3,58,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपए सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,927 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 984 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,43,037 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फखर जमान फिटनेस मसाइल का शिकार, साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। जरा के मुताबिक बाबर आजम आइंदा सैफ अफ्रीकी सीरीज और एशिया कप में एक्शन में नजर आएंगे। वापसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम की कारकर्दगी से मशरूत करार। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का दी 100 लीग के लिए नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के साथ मुआहिदा। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 1 अक्टूबर से भारतीय मीडिया ग्रुप सन के ज़ेर इंतज़ाम आ जाएंगे। इसके बायस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत पर सवालात उठते हैं।